Good evening, you all. So we had finished our first chapter, that was force, pressure, and friction, as well as we had revised that chapter. We have also given a test on that chapter. So right now we are going to start our second chapter, that is sound. Okay. So from here we will study about sound. I'll try to discuss all the topics, almost every topic, or at least 70 to 80% of class 9th of sound. Actually, this chapter is in class 8 as well as in class 9th. So I will teach you the content of class 9th of sound in your class. Will it be okay? Okay. And I'll also give some numericals from class 9th to you all. So right now we are going to start this chapter. Definitely we will spend some more time to get the advanced knowledge. So first we will get introduction of this chapter. Please write all the topics here. And we will not only complete this chapter, means sound, but also revise at the same time. First topic means after introduction we will discuss what is sound. As sound is a wave, that's why we will discuss all about wave. Thereafter we will discuss about sound. So this lecture will be dedicated to wave. Firstly we will discuss what is a wave, mechanical wave and non-mechanical wave. Non-mechanical wave is also known as electromagnetic wave. Thereafter longitudinal wave and transverse wave. You all have to write all the topics as it will become your homework after the completion of this lecture. This is going to be lecture 1 of this chapter. Write all the topics. Thereafter we will discuss characteristics of wave. I am writing that whenever you write it. Have you all written? And transverse wave, it is transverse. Have you all written? Aradhya, you came late. Have you written the topic written on your board? Should I raise now? Okay. Thereafter the next topic will be characteristics of wave. And there are 5 characteristics. First, wavelength. Very good. Amplitude.
frequency, time period, and wave velocity or wave speed, both are same. भेजें सर, देख लीजिए एक बार. So guys, these are the topics which we will discuss today. Thereafter we will start the relationship and all, but that will be for the next day. So what we are going to discuss here, first we will take the introduction of this chapter, why we are going to discuss this chapter, what is the importance of this chapter, and why should we study about this, and what the contents we are going to discuss in this chapter. Second, the most important thing, as you are going to study sound, you must know what is sound. So for, after discuss what is sound, as whenever we define sound, we discuss that sound is a wave. That's why we must know what is a wave. I always said you all that in physics you must focus on the concept building. Just don't mug it up, okay, sound is a wave. Whenever you get a new term, you must try to know about that. You must try to collect all the informations about that, because if you discuss that sound is a wave, and if you don't know what is a wave, then you will be unable to identify, or you will be unable to actually understand all the things about sound. That's why before starting sound, I have dedicated this lecture 1, only to wave. Means in this lecture we are going to discuss all about wave. Wave, the types of wave, means mechanical and non-mechanical wave. Do remember that non-mechanical wave is also known as electromagnetic wave. Thereafter we will be discussing electromagnetic wave and transverse wave, and the last topic will be characteristics of wave, means what are the properties of wave. First one will be wavelength, second one amplitude, third one frequency, fourth one time period, and fifth one wave velocity. Please keep this in mind that these 5 characteristics are going to be very important, because whenever you discuss light, our next chapter, there also we will be discussing that light is also a wave. Then if light is a wave, light should have wavelength, light should have amplitude, light should have frequency, light should have time period, light should have wave velocity. So these are the basics, these are the foundations. If you know all about wave, it will be convenient for you to understand about sound and to understand about light. So these are the topics which we are going to discuss. And the first topic we have for today, that is introduction of this chapter. There are many branches in physics. As when I started your chapter, force and pressure and friction, I had told you that that is a part of mechanics, the very important branch of physics. Right now we are going to discuss, we are going to deal with a new branch of physics known as acoustics. And acoustics is all about sound. Means sound is a chapter in physics, but the branch in which sound is discussed is acoustics. So acoustics is a branch of physics which deals all about sound. All about sound means what is sound, the natural phenomenon happening in sound,
all the thing, properties of sound, characteristics of sound, and how sound is being produced in human being, how do we listen, human ear, that the construction working of human ear, all the thing. What you are supposed to know in your standard, you should know what is sound, what is wave, all about wave. Thereafter, you should know how sound is being produced, how do we listen, what are the different types of musical instruments, what are just, how do we differentiate sound, that is very important topic. You must have observed that the sound I have, what I speak, in the way what I speak, or in the way when I speak, is something different whenever you are being taught by your English teacher. Means if your video is even off and if I am teaching, will you say that Prakash sir is teaching, or you will identify me? You will definitely identify me without seeing to me, because you have identified that there is a certain type of sound, there is certain type of voice which Anurag sir has. Suppose you are listening to music and there is Sonu Nigam. Will you say that he is Honey Singh? You are not even watching, but you will identify that he is Honey Singh or Sonu Nigam or Arijit Singh. How will you identify? Means that topic will be very important if we talk about concept, that how do we distinguish between two sounds, how do we differentiate between two sounds. Suppose the dog is barking, then you easily identify the dog is barking, or will you say your friend is saying anything? रोड पे कुत्ता भौंक रहा है तो आप बोलेंगे ना कि कुत्ता भौंक रहा है, या बोलेंगे कि आपका दोस्त चिल्ला रहा है? कुत्ता का भौंकने का आवाज आप बिना कुत्ता को देखे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीजें हैं जो साउंड को डिफरेंशिएट करती है। कुछ चीजें आप फोन लगाते हैं अपने दोस्त को और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दोस्त उठाया है, कि दोस्त का भाई या दोस्त के पापा या दोस्त की मम्मी उठाई है। तो आवाज को, दो डिफरेंट आवाज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, और वहां पे तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया जाएगा, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। इन्हीं तीनों में डिफरेंस होता है, इसी वजह से हम साउंड आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और चैप्टर के लास्ट में हम लोग ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे। हाँ, उसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, एको के बारे में पढ़ेंगे, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एको पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे, ये सब मतलब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, और फिर ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ह्यूमन ईयर का केयरिंग पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर है बहुत मजेदार, क्योंकि वो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप फील तो बचपन से करते ही आ रहे हैं। जब से जन्म हुआ है तब से हम लोग बोलना शुरू किए हैं, रोना शुरू किए हैं, सुनना शुरू किए हैं, तो ये वो चीजें हैं जो हम लोग फील करते हैं, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बहुत बेसिक से आगे की तरफ बढ़ूंगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे से पूछिएगा। So that was the introduction of this chapter. So first, sound है क्या? Sound is a wave. कहीं कहीं पे बोला जाता है sound is a form of energy which makes anything audible. साउंड एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है, साउंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एक वेव है जो चीजों को ऑडिबल बनाता है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आप मेरा साउंड सुन रहे हैं। तो अगर मेरे पास मतलब इफ आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस साउंड, इफ आई एम अनेबल टू प्रोड्यूस साउंड, विल यू लिसन टू मी? डेफिनेटली नो। अगर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा तो आप सुनेंगे कहां से? तो साउंड चीजों को ऑडिबल बनाता है। और यहां पर मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया कि साउंड एक वेव है। तो यहीं से आपके दिमाग में फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में तो आप 7th में पढ़ ही रखे हैं कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया कि फॉर्म ऑफ वेव है, सो अब हमें सब कुछ वेव के बारे में जानना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, लोग बेसिक्स को छोड़ देते हैं, इसीलिए वो फिजिक्स में आगे फंसते जाते हैं। आप 10th के बच्चे से पूछिएगा ना कि वेव क्या होता है, उनको नहीं पता होता है। तो अब आपको तो 7th में ही वेव के बारे में पता हो जाना चाहिए था, 8th में पता होना चाहिए, 9th में साउंड पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, 10th के बच्चों को पता नहीं होता है। और वेव नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि आप लाइट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिक्स
ब्रांच है जिसमें लाइट पढ़ते हैं, और ऑप्टिक्स दो पार्ट का, रे ऑप्टिक्स एंड मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो वेव एक ऐसा टॉपिक है ना, एकदम याद रखो आज से, जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वेव है क्या? द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस which carries energy from one point to another point without any direct contact। सर कुछ नहीं समझ में आया, क्या आप बोल रहे हैं? आएगा ना? मैं वेव का दो एग्जांपल आपको बताता हूं। लाइट एक वेव है और साउंड एक वेव है। मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस जो एनर्जी को कैरी करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं ना, साउंड एक एनर्जी है। मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे हूं, आप वहां पे हैं और आप सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड एक वेव है। क्यों वेव है? क्योंकि यहां पर वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस जा रहा है। डिस्टर्ब होके कैसे डिस्टर्ब होता है वो साउंड में आगे आपको बताया जाएगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। यहां पे आप अगर किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिस्टरबेंस जो है, जो एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। अब मैं यहां से बोल रहा हूं और आप वहां पे सुन रहे हो, तो एक्चुअली ये वेव के फॉर्म में जा रहा है, इसलिए आप सुन पा रहे हो। वेव के फॉर्म में जा रहा है सर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सर कि मैं बोल रहा हूं एनर्जी, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, क्या मेरे और आपके बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? डेफिनेटली नो, लेकिन फिर भी आप सुन पा रहे हैं क्योंकि साउंड एक वेव है। दूसरा एग्जांपल लाइट, बेस्ट एग्जांपल। आप अभी जहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं अपने स्टडी टेबल पे, आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई लाइट का सोर्स होगा, ट्यूबलाइट होगा या एलईडी होगा या बल्ब होगा, कुछ ना कुछ सीएफएल होगा, कुछ ना कुछ होगा। वो जो लाइट है आपके रूम के दीवार पे लगा हुआ, उस दीवार के लाइट से आपके कॉपी तक लाइट आ रहा है। क्या आपके कॉपी और उस ट्यूबलाइट के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? नहीं है, नहीं है ना? लेकिन लाइट उस एक पॉइंट से आपके कॉपी यानी दूसरे पॉइंट तक आता है बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के, तो लाइट क्या हुआ? वेव हुआ। वेव का मतलब हिंदी में तरंग होता है। जो डिस्टरबेंस है जिससे एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के, उसी को हम वेव कहते हैं। जैसे आप अपने बेडरूम में आप बेड पर हैं और उसके जस्ट बगल में वूफर रखा हुआ है और आप आराम से वहीं से रिमोट कंट्रोल करके गाना बजा रहे हैं। तो जो गाना आप सुन रहे हैं, वूफर और आपके कान के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? नहीं है, लेकिन आप सुन पा रहे हैं। मतलब ये कि वूफर से साउंड जो निकल रहा है वो वेव के फॉर्म में आपके कान तक पहुंच रहा है। ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को कैरी कराता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। मींस wave is a vibratory disturbance which carries energy from one point to another point without any direct contact। कहीं भी, यहां पे इस रूम में वहां पे ट्यूबलाइट जल रहा है, मैं यहां पे उसका फायदा ले रहा हूं, तो ये ट्यूबलाइट से लाइट यहां से यहां तक आ रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लाइट आ रहा है क्योंकि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी वहां से लेके यहां तक किस फॉर्म में आ रहा है? तो वेव करता क्या है? वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एनर्जी को कैरी कराता है
बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के कोई भी ऐसा वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस जो बिना किसी कांटेक्ट के एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कराए, उसे वेव कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो कहीं पे भी आप अगर ये नोटिस करो कि एनर्जी, जैसे वाटर वेव भी होता है, आप क्या करो, वैसे करना नहीं चाहिए, वाटर बॉडी को गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कभी ना कभी तो किए ही होंगे। कहीं पे भी तालाब है, नदी है, उस पे छोटा सा पत्थर मारो, आप देखोगे कि वहां पे ऐसा 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 शेप बनने लगा वाटर का। हाँ, तो ये वाटर शेप जो बनने लगा वो एक्चुअली क्या था? हाँ, गुड। ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो मतलब ये है कि वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, डिस्टर्बेंस से ही होता है सब कुछ, मतलब वेव का प्रोडक्शन या साउंड का भी, लाइट का भी। दूसरी बात ये कि ये एनर्जी कैरियर है, ये एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और तीसरी बात ये कि बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। और चौथी बात, इसका बेस्ट एग्जांपल साउंड है और लाइट है। इनफैक्ट साउंड एक वेव है, इसीलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे मैं जब साउंड के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करते रहना चाहिए कि सर अगर साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, सर अगर साउंड के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स था वो साउंड में भी होगा। जैसे आज आपको वेव का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताने वाले हैं, जो होते हैं वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। इन पांचों का डायरेक्ट कनेक्शन है साउंड से, क्योंकि साउंड एक वेव का एग्जाम्पल है। तो साउंड का भी अपना फ्रीक्वेंसी होगा, साउंड का अपना वेवलेंथ होगा। अब मैं अगर बोलूं कि साउंड का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है और आपको पता ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब टॉपिक से आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज अ वेव? वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस which carries energy from one point to another point without any direct contact. Clear? आगे वेव जो है वो 2 टाइप्स का होगा। हाँ, सॉरी, मोबाइल में ईयरफोन लगा के बोलते तो भी तो सुन पाते हैं बच्चा। ईयरफोन का माइक यहां पे होता है और आपका कान का ये यहां पे है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है ना, मतलब आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। फर्स्ट मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वेव 2 टाइप्स का है, एक आपका मैकेनिकल वेव हो गया, दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। नॉन मैकेनिकल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। होगा क्या? एक्चुअली यहां पे मीडियम की बात की जाएगी और मैकेनिकल वेव में, मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होगा जिसके लिए मीडियम की जरूरत होगी। मींस कि अगर मीडियम है तो ये वेव ट्रैवल करेगा, और अगर मीडियम नहीं है तो ये ट्रैवल नहीं करेगा। जबकि यहां पे मीडियम इज नॉट इसेंशियल, मतलब मीडियम हो या नहीं हो ये ट्रैवल नहीं करेगा। नहीं करेगा? करेगा। So the wave for which medium is essential for traveling is called mechanical wave, and the wave for which medium is not essential for traveling is called non-mechanical wave. अब एग्जाम्पल अगर ले इसका, तो जैसे साउंड, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, क्यों है मैं आगे बता रहा हूं। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, क्यों है मैं आगे बता रहा हूं। कैसे? मैं ये बोल रहा हूं कि मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव है जिसके लिए मीडियम जरूरी है, कि नॉन मैकेनिकल एक ऐसा वेव है जिसके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल साउंड है और नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बेस्ट एग्जांपल लाइट है। मैं बोल रहा हूं और अगर आप सामने बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, तो इसके पीछे का वजह यह है कि एयर है
जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं। मैं यहाँ जिस रूम में हूं, अगर यहाँ पे एयर नहीं हो या कोई मीडियम नहीं हो तो फिर मैं बोलते रहूंगा और कोई सुन नहीं पाएगा, जैसा कि वैक्यूम में होता है। अगर आप वैक्यूम में कोई साउंड प्रोड्यूस कराएंगे तो कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। मतलब साउंड के लिए मीडियम की जरूरत है, और साथ ही साथ ये मीडियम सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, तीनों में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सॉलिड्स में स्पीड सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में सबसे कम। इनफैक्ट आप ये नोटिस भी किए होंगे, जैसे जब आप स्कूल के क्लासरूम में होते हैं, बेंच पे आप कान लगा लो ऐसे और बेंच के नीचे से कुछ ठक ठक करो, आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगा। तो साउंड के ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत है। इसीलिए जब कभी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो मून पर जब जाते हैं तो वो लिपसिंग से बात करते हैं या फिर वॉकी टॉकी से बात करते हैं, मींस वो कोई और मीडियम यूज करते हैं, साउंड से वो बात नहीं कर पाते हैं। मींस अगर आप मून पे जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, और अगर आप ये चाहें अपने बेस्ट फ्रेंड को बोले कि भाई तुम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाओ, और मैं भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुना रहा हूं, तो आपका बेस्ट फ्रेंड फेवरेट सॉन्ग गा सकता है, आप सुन नहीं पाएंगे, और आप भी गा सकते हैं, वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे साउंड का ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लाइट, सनलाइट सन से लेके अर्थ तक आ रहा है, बीच में शुरुआत में तो चलिए कुछ किलोमीटर्स तक आपके एयर का ब्लैंकेट है या इनवेलप ऑफ एयर है, उसके बाद तो वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी लाइट आती है, क्योंकि लाइट के ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। एक और चीज ये समझ लीजिए आप कि ऐसा गलती से मत समझ लीजिएगा कि लाइट जहां मीडियम नहीं रहेगा वहीं चलेगा। मीडियम रहे तो भी वो ट्रैवल करेगा, मीडियम नहीं रहे तो भी वो ट्रैवल करेगा। लाइट आप देखते हो ना, वो सन से लेके अर्थ तक लाइट आ रहा है, बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल कर रहा है, और उसके बाद फिर मीडियम मिलता है उसको एयर, उसमें भी वो ट्रैवल करता है, ग्लास में भी वो ट्रैवल कर जाता है। लाइट में हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे कि लाइट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, अगर ट्रांसपेरेंट हो तो सब में वो ट्रैवल करता है। तो मतलब ये है कि मेनली वेव दो टाइप्स का, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसके ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मींस इफ देयर इज मीडियम mechanical wave will travel, and if there is absence of medium mechanical wave will not travel. But electromagnetic wave or non-mechanical wave is the wave for which medium is not required for traveling, means whenever there will be medium the wave will travel, and if there will be absence of medium the wave will also travel. And the example for mechanical wave is sound, and the example for non-mechanical wave is light. Thereafter, there are two different types of wave. First one is longitudinal wave, and the second one transverse wave. No, actually these are divided on द डिफरेंट ग्राउंड। वहां पे हम लोग बात कर रहे थे मीडियम के बेस पर वेव के दो टाइप्स, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मीडियम के बेस पर मतलब कि अगर मीडियम है तो वो मीडियम होना जरूरी है तो मैकेनिकल वेव, मीडियम होना नहीं जरूरी है नॉन मैकेनिकल वेव। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वो ट्रैवल करता कैसे। अगर मैं बोल रहा हूँ और साउंड वहां तक जा रहा है तो दो तरीके से हो जा सकता है, या तो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करके जाए, या फिर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो अगर टू एंड फ्रो मोशन हो वेव का, आगे पीछे, जिसको हम लोग बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। और अगर ये अप एंड डाउन मोशन हो तो इसको आप कहेंगे ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन मोशन, तो इसको आप कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब देखो क्या मैं बोल रहा हूं कि जैसे आप बात करें साउंड की, तो साउंड जब भी चलता है तो चलता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब साउंड जा रहा है तो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करके जाता है। लेकिन लाइट जो है ये जब ट्रैवल करेगा
तो ये ट्रैवल करेगा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच के आप अगर छोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे कर करके आ जाता है ना, मतलब वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो चार टाइप नहीं लिखेंगे आप, दो ही टाइप हैं मेनली वेव के, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, लेकिन वेव के दो अलग टाइप और बताया आपको जा रहा है इस ग्राउंड पर कि उसका मोशन किस तरीके से होगा, आगे पीछे के तरीके से होगा या अप एंड डाउन के तरीके से। इफ द वेव ट्रैवल्स इन टू एंड फ्रो मोशन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड इफ द वेव ट्रैवल्स इन अप एंड डाउन मोशन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। है ना आसान? ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल साउंड है, मतलब साउंड एक ऐसा वेव है जो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके चलता है। देखो वेव इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आप समझ सके कि साउंड चलता कैसे है, आगे ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपको ये सब ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके अगर जो चलता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, और जो अप एंड डाउन ऊपर नीचे चलता है वो ट्रांसवर्स वेव होगा, जैसे लाइट। हाँ जी, ये क्या किए हैं, यही किए हैं ना, यही तो दिखा रहे हैं कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता है। साउंड में अगर आप स्प्रिंग की बात करो, साउंड नहीं मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो स्प्रिंग इस तरीके से अगर है, आप इसको क्या करो कि ऐसे खींच के छोड़ दो तो आप क्या देखते हो, ये आगे पीछे करके फिर स्ट्रेस्ड हो जाता है कि नहीं होता है, यही है। तो लॉन्गिट्यूड वेव में फर्दर वेव दो टाइप्स के, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। Longitudinal wave, the wave which travels in to and fro motion, and transverse wave, the wave which travels in up and down motion. The example for longitudinal wave is sound, the example for transverse wave is light. आगे है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड के, वेव के, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अलग से बताया जाएगा आपको, वहां पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और प्लीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बता रहे हैं, मिक्स मत कर लीजिएगा कि कैरेक्टर्स ऑफ साउंड पढ़ा दिया गया। कैरेक्टर्स ऑफ साउंड 3 होंगे, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, जो बहुत लेट अभी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताने वाले हैं जो वेव का है। फर्स्ट विल बी wavelength, second amplitude, third frequency, fourth time period, and last one वेव वेलोसिटी। इन 5 के बारे में सब जान लेना है। सबसे पहले बात करेंगे वेवलेंथ की। वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ, सपोज किया जाए ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ग्राफ है ये, तो देखो बच्चा यहां से जब वेव चलना शुरू करता है ना, ये होता है हाफ रिवॉल्यूशन और ये होता है फुल रिवॉल्यूशन, मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन ये होता है। इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। यहां से चलना शुरू किया था, यहां तक जब आया तो हाफ पार्ट कवर किया, और जब ये यहां आ गया तो फुल पार्ट कवर हो गया। मतलब यहां से, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है, यहां से लेके यहां तक को वेवलेंथ कहते हैं। मींस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव to complete one oscillation is called wavelength, or the length of one wave is called wavelength. अब अगर कुछ और तरीके से सोचें, सपोज किया जाए यहां से शुरू ही ना हो, यहां से शुरू करता है, तो यहां से शुरू करने पर यहां तक तो क्वार्टर हुआ, ये हाफ हुआ और ये क्वार्टर, क्वार्टर प्लस हाफ प्लस क्वार्टर फुल हो गया, यहां तक ये हो गया वेवलेंथ। अगर कोई बोलता है कि ये यहां से शुरू करता है तो यहां से ये हाफ हुआ और यहां से ये फुल हो गया, ये हो गया वेवलेंथ। तो एक वेव, अब एक ऑसिलेशन का मतलब तो समझना बहुत जरूरी है ना।
जहां से शुरू करे और वापस उस पॉइंट पे आ जाए। ये यहां तक हाफ रिवॉल्यूशन हुआ और ये फुल रिवॉल्यूशन हुआ। एक रिवॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। एक रिवॉल्यूशन को ही हम लोग एक ऑसिलेशन कहते हैं, या एक ऑसिलेशन को हम लोग एक वेव कहते हैं। तो एक वेव कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए उसे हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, या एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहेंगे। कितना सिंपल, नाम से तो पता चल रहा है। वेव, एक वेव का जो लेंथ होगा उसे वेवलेंथ कहेंगे। और इसको और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप लिखना चाहें, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसको प्रेजेंट किस लेटर से करते हैं? ग्रीक लेटर लैम्बडा। ये याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स में आएगा। इनफैक्ट इसी क्लास में हम करवाएंगे न्यूमेरिकल्स v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा पर। ये फॉर्मूला मैं आगे डिराइव करके बताऊंगा। तो लैम्बडा वेवलेंथ का क्या हुआ? सिंबल हुआ। अब ये दो चीज तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। एक चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं कि फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं तो सिंबल और एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक लेंथ है, इस वजह से इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मीटर विल बी इट्स एसआई यूनिट। बताइए, तो वेवलेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेवलेंथ एक वेव का लेंथ होता है। वेवलेंथ एक वेव को कंप्लीट करने में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस होता है वेव के द्वारा। लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसा यूनिट मीटर होता है। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेव चल रहा है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, इसी डिस्टेंस को आप लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको वेवलेंथ कह रहे हैं। दूसरी बात, वाइब्रेशन की अगर आप बात करें, जैसे ट्रैवलिंग जो होता है वेव का, वो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। तो ये वाइब्रेशन जो होता है, सपोज इसी की बात करें हम लोग, इसी टॉपिक, इसी फिगर की, ये ऐसे जा रहा है। तो अगर आप इसको डिटेल में डीपली समझने की कोशिश करें तो पहले पॉइंट यहां से यहां तक ट्रैवल किया है, फिर ये यहां से यहां तक ट्रैवल किया, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, उसके बाद डाउन होना शुरू हुआ, थोड़ा कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो रहा है। तो ये अलग अलग पॉइंट पर अगर अलग अलग हो रहा है, इसका ये मतलब है कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इसका होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट created by a wave or the maximum displacement covered by a wave is called its amplitude. वेवलेंथ में आप बात कर रहे थे कि वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उस एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो था वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड में आपको कहा जा रहा है कि वेव अगर ऐसा ऐसा चल रहा है, इस तरीके से आया, तो इस तरीके से आया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट था। एकदम मिड में जब आप जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी एक क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस ही है, इसीलिए इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होगा। मैं सबको फिर से रिवाइज आज ही कराऊंगा। क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? वेवलेंथ, एक वेव को कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कवर करने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वेव, उसे वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वेव का, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तीसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है और वेव वेलोसिटी है। बट एक्चुअली आप देख रहे हो टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का, 8 बजने वाले हैं, तो इस वजह से आगे का मैं क्लास, मतलब आगे का जो 3 टॉपिक है ये आपका पेंडिंग होगा। नेक्स्ट डे हमारा जब भी क्लास होगा फ्रीक्वेंसी से हम लोग शुरू करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं कि मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या है। आज हम लोग का जो क्लास था, साउंड हम लोग चैप्टर शुरू किए थे, और साउंड चैप्टर शुरू करने पे हम लोग ये देखें
कि हमें आज इंट्रोडक्शन लेना था इस चैप्टर का, फिर हम लोग पढ़े कि साउंड होता क्या है, फिर हम लोग देखे कि साउंड एक तरह का वेव है, इसलिए पहले हम लोग वेव के बारे में पढ़ लिए, मतलब वेव है क्या, और फिर देखे कि वेव दो टाइप्स का होता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव भी वेव के दो टाइप्स हैं। और लास्ट टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, लेकिन टाइम की कमी की वजह से दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कवर कर पाएंगे, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा और नेक्स्ट यहीं से शुरू करेंगे। सो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि साउंड फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है एकॉस्टिक्स, जिसके बारे में सब कुछ साउंड के बारे में पढ़ा जाता है। इस चैप्टर में आपको 8 का टॉपिक तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, 9th में भी तो साउंड पढ़ना है, उसका 70 to 80% मैं कवर करा दूंगा। 9th में फिर आप मिलेंगे तो उसको रिवाइज करेंगे हम लोग, और कुछ टॉपिक 9th में फिर हम लोग 11th वाला डाल लेंगे, और उसी लिए हम लोग हैं थोड़ा एडवांस पढ़ने के लिए। और समझ में आएंगी, जहां नहीं समझ में आए वहां आपको पूछना है, बार बार पूछना है। साउंड है क्या? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, साउंड इज अ वेव, और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनीथिंग ऑडिबल। साउंड एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का, साउंड एक ऐसा फॉर्म है वेव का जो चीजों को ऑडिबल बनाता है। आप कोई भी वॉइस सुनते हैं तो साउंड की वजह से आप सुनते हैं। इसके बाद उसी चीज को फिर अलग तरीके से मैं बता रहा हूं ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि साउंड एक वेव है, तो फिर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेव के बारे में सब कुछ। तो अब हम लोग का डिस्कशन थोड़ा डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गया का मतलब कि हम साउंड के बारे में आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम वेव के बारे में सब जान लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि साउंड क्या है और साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड कैसे ऑडिबल करता है चीजों को, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कह दिया गया कि साउंड एक तरह का वेव है, तो पहले हमें वेव के बारे में सब कुछ जानना होगा, फिर हम लोग साउंड के बारे में जानेंगे। तो इस वजह से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वेव क्या होता है, और आपको बताया गया कि वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है, वो जो एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। और आपको बताया गया कि साउंड एक तरह का वेव है, लाइट एक तरह का वेव है, क्योंकि साउंड कोई कुछ बोल रहा होता है, कहीं पे कुछ बज रहा होता है, उस सोर्स ऑफ साउंड और हमारे कान के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम सुन पाते हैं क्योंकि वो वेव है। कहीं पे भी लाइट जल रहा होता है, सन का लाइट देखो ना, सन का लाइट और हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, हो जाए तो फिर जल ही जाएंगे, राख भी पता नहीं चलेगा। तो सन कहां, हम कहां, फिर भी सन का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सन को हम लोग फील कर रहे हैं, सन के लाइट को फील कर रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं। इसका मतलब कि सन का लाइट यानी कि लाइट एक वेव है। आगे वेव बेसिकली दो टाइप्स का, फर्स्ट ये मैकेनिकल, जिसके लिए मीडियम की जरूरत है, मींस मीडियम होगा तो ये वेव ट्रैवल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव, यानी कि जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, मींस कि अगर मीडियम हो तो भी वो ट्रैवल करेगा और मीडियम नहीं हो तो भी वो ट्रैवल करेगा। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है साउंड और नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है लाइट। इसके बाद वेव दो और टाइप है, अगर आप उसकी बात करें कि वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप ऐसे अप एंड डाउन, मतलब आगे पीछे करके जा रहे हैं, या अप एंड डाउन करके जा रहे हैं। अगर आगे पीछे करके वेव जा रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और अगर अप एंड डाउन करके जा रहा है तो वो ट्रांसवर्स वेव है। आगे जो है वो एग्जाम्पल टू एंड फ्रो का साउंड है, मीन साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने सिर्फ दो आज डिस्कस किया है, लेकिन इन दोनों के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। और मैंने आपको ग्राफ के हेल्प से बताया कि पॉइंट, अगर आप इस तरीके से ग्राफ स्केच कर लेते हैं तो ऐसे वेव ट्रैवल करता है। अब ये जो ट्रैवलिंग हो रहा है, इसमें अगर एक पॉइंट यहां से जो शुरू किया जा रहा है और यहां तक जो जा रहा है, इसको हम लोग वन ऑसिलेशन कहते हैं या वन वेव कहते हैं। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो गया, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, इसी डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। एंड नाम से ही पता चल रहा है, वेव, एक वेव का जो लेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा एंड इट्स यूनिट इज मीटर। देयर आर एम्पलीट्यूड। अब वेव अगर ट्रैवल कर रहा है तो वेव का अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया उसी को आप एम्पलीट्यूड कहेंगे। मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by a wave is called amplitude. It is represented by capital letter A and its unit is meter. आगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव वेलोसिटी नेक्स्ट डे के लिए। आज का यहीं तक क्लास है।
That's all. Thank you.